ہلو جی ناز کرتے ہیں ملک، ناز کرتے ہیں ملک، زمین کے افعال یہاں دو چار خدا ہوتا ہے. یہ دو چار گھڑیوں کے لیے نہیں، قیامت کے لیے ذکر کا میدان بنایا گیا. اور میں تو وقت نہیں دوں گا، آپ کو دیکھا تعبیر ڈھونڈتا رہا. اور اس موضوع میں میں نے جگہ کی تلاش کہاں سے ہوئی، مختصراً بات بھی ہوئی لیکن وہ قبول نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ سعادت بزور بازو میں سعادت ان مدرسوں نام لکھا ہے. ہمارے سمجھی محمد جاوید حسین صاحب کے مقدر میں تھی یہ سعادت. اور یہ تفصیل کا موقع ہوتا تو میں بتاتا کہ میں کہاں کہنا چاہوں. اور بات چیت بھی ہوئی، بینا بھی ہوا، اور تنہا نہیں ایک فیملی گیا اور وہ جگہ دیکھا پسند آیا. اپنی پسند سے کیا ہو خدا کو اگر پسند نہ ہو. میں یہ خیال و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا یہ جگہ اللہ کو زیادہ مطلوب ہے اور یہ سعادت طاقت و قوت سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے جب تک اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو جائے. بس میں یہ کہوں گا اللہ پاک ہم تمام کوششوں کو قبول فرمائے. یہ دعا اذان و جملہ جہاں آمین بات ہمارے بلا. میں حضرت مفتی ہمایوں اقبال صاحب کو دعوت دوں گا وہ تشریف لائیں اور آ کر اپنا تاثرات اور جتنے یہاں کارندے ہیں اور جتنے مسلمان بیٹھے ہیں مومن ایمان والے ان کی روح میں روحانیت آج جلا دیں. آپ تشریف لائیں اور مختصر میں اپنا کلام اور باتوں سامعین کو کے سامنے پیش فرمائے تاکہ ہم سب محفوظ ہو سکیں. سعادت کی بات ہے کہ اللہ کا مہینہ رمضان المبارک جس کا ہم لوگ استقبال کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے شعبان المعظم کا یہ مہینہ جس کی آج 11 تاریخ ہے. آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ شعبان و شہری اور رمضان شہر اللہ. یہ مہینہ جس مہینے میں ہم لوگ مدرسے کا افتتاح کر رہے ہیں. یہ مدرسہ جامعہ تدریس القرآن اس کا افتتاح کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مہینہ میرا ہے اور اس کے بعد اللہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے جو قرآن کا مہینہ ہے. یہ حسن اتفاق ہے کہ آدمی جو اللہ کی رحمت میں رہنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت سے رمضان کے پہلے عشرے کی رحمتوں سے مستفید ہونا چاہتا ہے، خدا کی مغفرت کا پانا چاہتا ہے اور جہنم سے خلاصی چاہتا ہے، دنیا کو آخرت کی کھیتی بنانا چاہتا ہے، تو آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہوگی. قرآن کو جو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنا ضروری ہے. حدیث قرآن کی تفسیر ہے. بہت ہی سعادت مند لوگ ہیں زندہ حاضرین اور یہ بچے بھی جو آج شور مچا رہے ہیں، جو اس کی سنجیدگی کو اور اس کی نزاکت کو اور اس کی طاقت کو، مدرسے کی قوت کو، اس کی اہمیت کو، قرآن کی حفاظت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی قبول ہو رہے ہیں. اس مجلس میں حدیث شریف کے اندر اس کی بشارت دی گئی ہے کہ تلاوت کلام پاک کا جہاں معاملہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قبولیت شروع ہوتی ہے.
सकीनत का नुज़ूल होता है, फरिश्ते घेर लेते हैं। अल्लाह ताला ये कबूलियत का वक्त है, अमाल की पेशी का वक्त है, फरिश्ते के तबादले का वक्त है, ये असर का वक्त है। अल्लाह ताला जो अपने पास फरिश्तों के पास जिक्र जमील कर रहे हैं, उसमें इन बच्चों को भी शामिल कर रहा है कि ये बच्चे भी हैं जिन्होंने आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी की कसम खाई है और उन्होंने कुरान को समझने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तामीर की है। वाकई मोहम्मद जावेद साहब, आपसे अल्लाह ताला ने जो मौलाना मुजीबुर रहमान साहब ने कहा, ये आपका अमल नहीं है, आपका दखल नहीं है, ये अल्लाह की कबूलियत है कि इस जगह को जो बहुत ही कीमती और नफीस ज़मीन है, आपने कीमती ज़मीन से बहुत बेहतरीन तिजारत का मामला किया है। इस तिजारत में घाटा नहीं है दोस्तों, यहाँ नफ़ा ही नफ़ा है। यहाँ पे आपने दुनिया को बेच करके आखिरत खरीदी है, इस बात की उलमा किराम शहादत देते हैं। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का फैज़ यहाँ से जारी होगा। वक्त और हालात इस बात के मुतकाबी है कि अभी जवाब दिया जाए, कुरान से बड़ी ताकत नहीं हो सकती है। जो मसाजिदों को छीनने की हमसे कोशिशें कर रहे हैं, जो कुरान को हमसे छीनना चाहते हैं, इस्लाम को हमसे छीनना चाहते हैं, नारे तकबीर को छीनना चाहते हैं, अल्लाहु अकबर की सदाएं ये नहीं चाहते हैं कि मेरे कानों से टकराए। यहाँ जय श्री राम का नारा ये लोग चाह रहे हैं। इसका मुकाबला कौन करेगा? इसका मुकाबला वही करेगा जो आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे से फारिग होगा। वो जानता है कि उस वक्त जब अबू जहल ने नारे तकबीर की जगह पे नारे जय श्री राम का या होबल की जय हो, उसका नारा अबू सुफियान ने लगाया था जब हालत इस्लाम पर नहीं आए थे, इस्लाम कबूल नहीं किए थे। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहो अल्लाहु अकबर का नारा तुम लगाओ। वाकई हम अपने लिए शहादत की बात समझ रहे हैं। अभी वक्त और हालात के हिसाब से जो मसाइल खड़े किए जा रहे हैं, यकसा सिविल कोड का मामला ये नाफिज हो चुका है उत्तराखंड के अंदर। जो इसी मुल्क की एक रियासत है, वहाँ पे हलाल खाना हराम है और हराम खाना हलाल है। ये नारा लगाया है, कोई हलाल खाना चाहे तो नहीं खा सकता है, हराम खाना चाहे तो उसकी इजाजत है। कोई जायज तरीके पे बीवी रखना चाहे, उसके औलाद नहीं है, बीवी उन्होंने शादी की, उसकी बीवी मौज है, दूसरी शादी करना चाहे तो शादी नहीं कर सकता है, लेकिन वो रिलेशनशिप में रह सकता है। आज इसी मुल्क में ये हो रहा है, ये पूरे मुल्क में ये करने की साजिशें हैं। इस वक्त उलमा किराम एक मिशन और तहरीक पर है। क्या जरूरत थी कारी अंजन रब्बानी साहब को, ये भी तो सरकारी मदरसे के मोहतरम साहब और अच्छी तनख्वाहें पा रहे हैं। मौलाना मुजीब साहब को क्या जरूरत थी मदरसे की बुनियाद में डालने की? स्कूल बनाते, कॉन्वेंट बनाते, जहाँ से फीस लेते, भारी फीस वसूल करते और पैसे कमाते, बिल्डिंगें खड़ी करते और 4 व्हीलर से चलते। क्या जरूरत थी? इन्होंने दिल के अंदर ये ख्याल किसने डाला है? इन हालात में डाला है कि आज मदरसे मजबूत मदरसे की जरूरत है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे वक्त इजाजत नहीं देता कि ज्यादा तवील गुफ्तगू करूँ, हालांकि ये मेरा उन्वान है, ये उन्वान है मेरा कि इस उन्वान पर हम लोग गुफ्तगू करते हैं। सारे उलमा किराम अब इसी मिशन पर आ गए हैं कि लोगों, अगर तुम जवाब देना चाहते हो, हालात का मुकाबला करना चाहते हो, हमारे अकाबरीन कहते हैं, हज़रत अली और हम किताब है, जितने बुजुर्गान दीन कहते हैं, इसका जवाब अगर दिया जा सकता है। हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जाती है, हम कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ हमारी बात नहीं सुनी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट ये कह रहा है कि आप मकामी कोर्ट जाइए, हमको धमकाया जाता है। लेकिन हम क्या कैसे अपने मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, कैसे अपने आईनी कानून की हिफाजत करेंगे, कैसे आकाए मदनी की सुन्नत को जिंदा करेंगे? ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये कुरान करीम में लिखी हुई है, जिसकी तालीम के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला निगाह रहमत से खैर का काम होता है। शयातीन इस बीच में भी घुस जाते हैं और ऐसे लोगों को जो खैर में अल्लाह ने कबूलियत नसीब की है, वो कोशिश इस बात
भी करते हैं कि इस मदरसे की दीवार में लिबास कर दी जाए, इसको आंधी और तूफान की नजर की जाए, और ऐसे इदारे को सियासत का अड्डा बनाया जाए। तो हमें दुआ ये करनी है कि अल्लाह ताला जितनी खानका है, जितने मदारिस और जितने मकातिब हैं, अल्लाह उनको कबूलियत नसीब फरमाए और निगाह वक्त भी उसकी हिफाजत फरमाए। हमारा एक आदमी जो अल्लाह कहता है, दाढ़ी रखता है, टोपी रखता है, लेकिन वो आदमी अल्लाह के रसूल के घर के खिलाफ खड़ा हो जाता है, उसको अगर सिक्योरिटी नहीं बनाया जाए, उसको सदर नहीं बनाया जाए, कोई ओहदा नहीं किया जाए, वो अल्लाह के रसूल के घर से बगावत का ऐलान करता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये काम नेक काम है, इसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे अज़ाइम को, हमारे इरादे को और हमारे इस काम को कबूलियत नसीब फरमाए, हमारे नीयत के अंदर खुलूस नसीब फरमाए। अल्लाह ताला खालिस काम को पसंद करता है, वो अपनी इबादत को पसंद करता है, लेकिन उसकी इबादत के अंदर अगर कोई खोल है, अगर कोई मिलावट है, तो अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता है। ऐसी नमाजें भी मुंह पे मार दी जाती है, ज़कात भी, माली इबादतें भी मुंह पे मार दी जाती है। खुदा कहता है तुझको अज्र नहीं किया है, इसलिए कि तुमने ये काम हमारे लिए नहीं किया था, बल्कि अपने पौधे और मनसबे और मकाम और मनसब पे इजाफे का सामान तू चाहता था, वो अज्र मिल चुका है। तो इस मदरसे के लिए जमीन देने वाले को, मदरसे के बानी को, कारी अफजल रब्बानी साहब को, मौलाना मुजीबुर रहमान साहब को और मुस्लिमीन को, और जो जो लोग भी आए हैं, अल्लाह ताला उनकी जायज़ मुरादें पूरी करे और उनके काम को अल्लाह ताला खुलूस नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ये इदारा हम लोग फिर दूसरी मजलिस करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये बच्चे जो हंगामा कर रहे हैं, इसी तरह बच्चों की बड़ी तादाद होगी जो कुरान के हाफिज़ होंगे, और हम लोग इंशाअल्लाह उनके सरों पे पगड़ियां बांधेंगे इंशाअल्लाह। कहिए आमीन। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह